नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जेएनआर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और माफ कीजिएगा, प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। In Chinese, ni hao. In Japanese, konnichiwa. Amaria Kojamo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever this speaks Swahili. The Japanese, of course, our hearts go out to the Japanese. There's a tsunami, and there are these. There's the most massive earthquake this century. It's the 6th largest earthquake ever on the Richter scale, 8.8 on the Richter scale. Ever since earthquakes started to be measured on the Richter scale, which has hit the Kamchatka Islands near the Bering Sea in Russia, and of course Japan, the island of Hokkaido. Now, we can only pray for people. That's it. That's all that we can do, because in front of the fury of nature, man is helpless. And Trump did this little bit over here. He did, tweet the entire thing and warned the Russian coast and the Japanese coast. Said, beware, some things are going to come to you. And Trump has just, well, I can't really call it an earthquake, it is expected, 25% tariffs on all Indian goods, plus penalty for buying oil from Russia. Yes, bilkul. Isn't that amazing? Europe is buying gas from Russia, no penalties on them so far, but penalty for buying oil from Russia. You have banned Iranian oil, you want us not to buy Russian oil. Why shouldn't we? Let's be very clear. और जहां तक कि हम लोगों का सवाल है, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं, प्रदीप जी भी यहाँ पे आप पहले दिन से बोल रहे हैं, आखिर में there will have to be a Russia-India-China nexus. There will have to be a Russia-India-China or India-Russia-China common market to compete with the best of the best in Europe and America. Pradeep ji. Exactly, and that is, in fact, that will be alliance, a greatest alliance that can actually give a good, befitting world trade and business and political equations if India, China and Russia come together. That's right. It will be a fantastic combination. And even otherwise, if we open up our borders, it will be a great, great business venture, good coordination for people to move from one place to the other without much restrictions. Now there are too many restrictions. Things will move, things will ease out politically, diplomatically and business-wise. और लेकिन अभी वर्किंग वीजा तो चालू हो गया सर, जहाँ तक के चाइना का सवाल है. I hope the Chinese reciprocate. And as far as Russia is concerned, I hope we will be able to get visa on arrival as far as Russia is concerned, because the Russians need us right now. But we need to reply to this. Let's be very clear. Of course, as far as the Piyush Goyal's ministry is concerned, Commerce Minister, he says that he's very, very hopeful he'll be able to get a much better deal, because Mr. Trump has been known to change his mind. Now, today is 30th of July. प्रदीप जी, ये नए टैरिफ जो हैं, ये 1 अगस्त से यानी परसों से लागू हो जाएंगे. बिल्कुल होगा. Oh, this is going to be something. Let's go straight across to our guests. I believe we have a very, very distinguished panel indeed. Let's go straight across to them. Can we go to our guests, please? Yes, here we are. Sameer Bhakra साहब, नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. राकेश प्रजापति साहब. जय महाराष्ट्र. राकेश प्रजापति साहब, नमस्कार सर, जय हिंद. प्रजापति साहब, जय हिंद. जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद. जय हिंद. और गोपाल तिवारी जी, जय हिंद, वेलकम बैक सर. गोपाल तिवारी जी, नमस्कार. गोपाल तिवारी जी, नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर नेशन नाउ में. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने that you honored us with your presence. Thank you very much sir, गोपाल तिवारी साहब. राकेश प्रजापति जी, अभी आपने पार्लियामेंट में डिस्कशन देखा ऑपरेशन सिंदूर पर. आज तीसरा दिन है इफेक्टिवली, 2 दिन लोकसभा के, आज पहला दिन राज्यसभा का. Are you satisfied sir with the government answers? सरकार के उत्तर से, सरकार के स्पष्टीकरण से, सरकार की स्टेटमेंट से
क्या आप संतुष्ट हैं? प्रोफेसर प्रजापति। बोलिए सर। सर एक्चुअली मैं पूरा प्रश्न सही समझ में नहीं आया आपका। सर प्रश्न ये है कि क्या आप संतुष्ट हैं सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? सर राजीव जी, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सत्ता पक्ष के 3 प्रमुख नेताओं, जी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिए, बयान दिए, वो पूरी तरीके से राजनीतिक बयान थे। ऑपरेशन सिंदूर से उनका लेना देना कुछ भी नहीं। वास्तविकता यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो श्रेय था वो मुख्य रूप से अगर कोई एक व्यक्ति लेकर गया पूरे विश्व में तो वो व्यक्ति है ट्रंप, जिन्होंने भारत की विदेश नीतियों की और भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय शिमला समझौते की धज्जियां उड़ाने का काम किया। क्योंकि आपको शायद पता ही होगा कि जब 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ था, तब ये बात तय की गई थी कि कोई भी तीसरा देश हम लोगों की मध्यस्थता नहीं करेगा। लेकिन जब वो सीज फायर हुआ, जब बात सरेंडर की आई, तो सरेंडर की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी, हमारे देश के गृह मंत्री को करनी चाहिए थी, हमारे देश के रक्षा मंत्री को करना चाहिए थी, या रक्षा डिफेंस से जुड़े किसी बड़े अधिकारी को करनी चाहिए थी। लेकिन पूरे विश्व ने देखा कि उसकी घोषणा की गई तो किसके द्वारा की गई? ट्रंप के द्वारा की गई। ये बड़ी ही मतलब शर्मनाक बात थी। और एक बार नहीं, फिर उसके बाद लगभग 27 बार हो चुका है अब तो, कि 27 बार ट्रंप लगातार कह चुके हैं कि मेरी वजह से सीज फायर हुआ, अगर मैं नहीं चाहता तो सीज फायर नहीं होता। दूसरी बात राजीव जी, उसके बाद हास्यास्पद बात कहूंगा मैं तो, ये हास्यास्पद कि आनन फानन में 100-125 दिन तक सरकार सोती रही, 100 दिन तक सरकार सोती रही, क्योंकि 22 अप्रैल को घटना हुई थी और 22 अप्रैल के बाद 22 मई हो गया, 22 जून हो गया और 22 जुलाई निकल चुका। 100 दिन और आज 30 तारीख, परसों 28 तारीख हो चुकी, यानी 1 महीना 8 दिन हो चुके। उस 100 दिनों के बाद जब विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करने का दबाव डाला भारत सरकार पर सदन में, तब जाकर के ऑपरेशन महादेव के बारे में अचानक से गृह मंत्री आकर के बताते हैं। और कितना अचंभित बात यह है कि ऑपरेशन महादेव हुआ, किसी को पता नहीं चला। ऑपरेशन महादेव हुआ, उसमें 3 टेररिस्ट को मार दिया गया। और वो आखिर सवाल इस बात का है राजीव जी, मैं तो कई न्यूज चैनल पर बैठ चुका कल के बाद से, मैं हर चैनल पर एक ही बात पूछ रहा हूँ, किसी के पास जवाब ही नहीं है सीधे सीधे, कि मुझे ये बताओ भैया कि ये 100 दिन तक ये 3 टेररिस्ट कहाँ थे, किसके घर रह रहे थे, किसने पनाह दी थी, किसके घर खाना खा रहे थे, कौन इन्हें पानी पिला रहा था, कौन किनके संरक्षण में रह रहे थे, ये पता ही नहीं। और एकदम से जब दबाव बना तो एकदम से क्या कर दिया जाता है? ऑपरेशन महादेव कर दिया जाता है और तीनों की हत्या हो जाती है, मार दिया जाता है। कोई मारा ही क्यों? जिंदा पकड़ लेते, जिंदा पकड़ के ये तो पता चलता कि कम से कम देश के साथ गद्दारी करने वाले कौन लोग हैं जो इन्हें पनाह दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जी देश के गृह मंत्री जी, राजीव जी आप भी सोचिएगा, देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कि हमने उनकी जेब के में से एक चॉकलेट का रैपर निकला, एक चॉकलेट निकली जिसका चॉकलेट निकली, रैपर निकला, चॉकलेट निकली जिसका रैपर पाकिस्तानी था। बड़ी हंसी आ रही थी मुझे तो इस चीज को, स्टेटमेंट सुन करके, कि देश का गृह मंत्री इतनी भी नहीं
वो पता चलता कि चॉकलेट 100 दिन तक मेल्ट नहीं हुई क्या? कहाँ रखी थी वही 100 दिन तक ये चॉकलेट? सर, ठंड का भाई, मौसम होगा। अगर वो पाकिस्तान से लेकर के आए थे तो 100 दिन तो घटना को हो चुके थे, उससे जी। 8-10 दिन पहले भी आए होंगे। तो प्रजापति साहब। 110 दिन तक ऐसी कौन सी चॉकलेट है? मेरे ख्याल तो विश्व में अभी ऐसी कोई चॉकलेट नहीं अमित बनी शाह है जी। जो 110 दिन तक मेल्ट ना हो। अगर मेल्ट हुई, फिर कुछ प्रवक्ताओं का ये कहना था कि वो जंगलों में रह रहे थे, तो भैया जंगलों में कौन से फ्रिज हुए हैं? जंगलों में मतलब कितनी तरीके से But कितनी अच्छी बीजेपी का स्क्रिप्ट लिखी पूछना- गई है प्रजापति ऑपरेशन साहब, महादेव की। प्रजापति ये साहब। पूरा देश समझ चुका है। अब कोई भी कहे या ना कहे, कोई समझे या ना समझे, भाजपा के प्रवक्ता जाने या ना जाने, नेता जाने ना जाने, आम जनता जान चुकी है इन्हें, आम जनता उन्हें समझ चुकी है कि Foreign ऑपरेशन sources। महादेव तो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है। प्रजापति साहब, अमित शाह, नरेंद्र मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे, अमित शाह जी कह रहे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर कह रहे, नो फॉरेन इंटरफेरेंस। किसी फॉरेन देश के नेता ने मुझे फोन नहीं किया युद्ध रोकने के लिए। प्रधानमंत्री बोल रहे, अमित शाह बोल रहे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर बोल रहे। तो यही सबका पूछना है कि आप इंडियन, हमारे सरकार का वर्जन क्यों नहीं मानते? आप फॉरेन वर्जन क्यों मानते हो? फॉरेन वर्जन पे ज्यादा, व्हाई डोंट यू बिलीव आवर मिलिट्री, आवर गवर्नमेंट, आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर? प्रजापति साहब, क्या हुआ ऑपोजिशन को? बीजेपी का पूछना है। प्रदीप जी, बोलिए। पाकिस्तान और भारत के युद्ध में भारत की सेना और पाकिस्तान की ये सेना लड़ रही थी। भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लड़ रहे थे। तो भैया ये बताओ, इस तीसरे ट्रंप की आवश्यकता क्यों पड़ी? भैया, ट्रंप की आवश्यकता पड़ी भी तो ट्रंप ने आज तक ये बात बोली एक भी बार प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं कहा? अच्छा, सीधा प्रश्न था, ये तो कई बार सरेंडर की बात कही जा चुकी है राहुल गांधी द्वारा, अखिलेश जी द्वारा। आखिर एक शब्द, एक सेंटेंस ही बोलना तो था। कल तीनों नेताओं में से जितने भी भाजपा के नेता हैं, किसी भी एक नेता ने ये क्यों नहीं बोला सदन में खड़े होकर के कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप की वजह से सीज फायर नहीं हुआ है, सीज फायर का फैसला भारत का था, भारत की रक्षा का था, मंत्री का था, भारत के गृह मंत्री का था, भारत के प्रधानमंत्री का था। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये बोला हो सदन के अंदर तो बताएं, क्यों नहीं बोला आखिर? तो भाई, जब आप ही खुद अपने आप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करवा रहे हो तो विपक्ष तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा ही कि आप। फिर वही बात है, मुझे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ट्रंप का कई बार फोन आया। अरे फोन आया है तो एक बार सार्वजनिक कर दो, क्या परेशानी है? दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप ही हो जाएगा। कौन सी परेशानी है अगर सार्वजनिक कर देंगे? अच्छी बात है ना, आपका तो कद बढ़ जाएगा ना और ज्यादा। एक बार जी। प्रधानमंत्री जी, ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई है, 2 घंटे बातचीत हुई है, शायद उनके कहने के अनुसार तो ये है कि 2 घंटे बातचीत हुई है। उस 2 घंटे बातचीत का ऑडियो सार्वजनिक कर दे। मन की बात सुनाते हैं, मन की बात की जगह एक बार पूरे देश को वही ऑडियो सुना दे, पूरा देश समझ जाएगा। अरे पूरी बात तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, भारत के प्रधानमंत्री जी को इंग्लिश इतनी समझ में भी आती होगी कि 2 घंटे ट्रंप से बात कर ले? हास्यास्पद है पूरी तरीके से, सोचनीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू गोपाल तिवारी जी। गोपाल तिवारी जी, प्रियंका जी ने यह बोला कि आप 11 साल से सरकार में हैं, अगर आप उपलब्धियां लेते हैं तो जिम्मेवारियां भी लेनी पड़ेगी। उन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने कि अभी तो आपकी सरकार है ना, 11 साल से आपकी सरकार है, तो ये जो जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं उसकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी ना। आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, वो उपलब्धियों का श्रेय आप ले रहे हैं, आप श्रेय जरूर लें। दैट वाज अ वेरी नाइस स्पीच बाय द वे। शी सेड आप श्रेय जरूर लें लेकिन जिम्मेवारी भी लीजिए। और साथ में उन्होंने अपनी मां के आंसू के बारे में बात करी। यह कहा गया कि बाटला हाउस एनकाउंटर में सोनिया जी रो रही थी किनके लिए? जो आतंकवादी मारे गए। बाय द वे, देयर इज नो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ वेदर दैट टुक प्लेस और नॉट।
or whether or not Sonia ji actually wept for those terrorists who had been killed. There is no such thing, by the way, as far as I know. अब गोपाल तिवारी जी आप बोले। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर। अभी ये जो बात हुई है, ये इनको संसद में इसके ऊपर डिबेट लेनी पड़ी। उसके लिए कई कारण हैं। लगातार विपक्ष का जो दबाव बना हुआ था, और अभी उस समय संसद बुलाया था, उसी समय उन्होंने संसद लेना चाहिए था। बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उस समय जब अटल जी थे, नेहरू जी थे, तब उन्होंने एक दूसरे के मांग पे संसद बुलाई थी, चर्चा की थी। ऐसा नहीं थी कि नहीं थे। ये इनका कौन सा सत्ता का और डेमोक्रेसी का अपना अलग ही तरीका है, पता नहीं। ये लोग, दुनिया देख रही है। जो भी है, मतलब क्या गलत कहा उन्होंने। ये संसद में चर्चा किसके ऊपर थी? सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर नहीं थी, ये चर्चा थी पहलगाम हमला। पहलगाम हमला क्यों हुआ? जब 370 हटाने के बाद भी अगर आपके पास, आपने जो बोला था अमन चैन शांति है, और आपके कहने पे लोग भरोसा करके वहां आए, अभी वहां पे तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो होगी तो होगी, कम से कम टूरिज्म एक जो बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज्म, उसके लिए लोग आए, आपके भरोसे आए सर। और फिर आप उनको ऐसे हवा, मतलब कहीं सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो ये अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अच्छा, इसके ऐसे भी नहीं कि आपको एक कोई तजुर्बा है, आपको तजुर्बा है उरी का, आपको तजुर्बा है पठानकोट हमले का, आपको तजुर्बा है पुलवामा हमले का, और उस समय तो राष्ट्रपति शासन था। उस समय के गवर्नर ने भी सवाल उठाए थे, आपने कहा उनको चुप बैठो, सत्यपाल मलिक को। अभी वही कितना दोहराया है। अभी भी मनोज सिन्हा जो वहां के लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यपाल है, उन्होंने भी अभी 4-5 दिन पहले कहा कि ये तो गलती है। तो फिर इसका कौन लेने, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? क्या गृह मंत्री को उसको देना नहीं चाहिए इस्तीफा? जब 26/11 हुआ था तो हमारे देश के गृह मंत्री ने रिजाइन किया था, तो इनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं, या इनको कोई पूछने वाले नहीं है? भाजपा में इनकी चलेगी, गुलामशाही है, कोई भी है, लेकिन देश के सामने अगर ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अगर सही में देश की जिम्मेदारी लेना चाहती है, तो बीजेपी और आरएसएस से अंदर से दबाव से इनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि इनके ये दोनों के सिवा इनके पास कोई है नहीं। क्या कोई अच्छा कोई नेता है नहीं कि बीजेपी के पास, जो एक अकाउंटेबल नेता के रूप में पेश आए करके? गोपाल जी, मनीष तिवारी, शशि थरूर, चिदम्बरम, जिस प्रकार से मनीष तिवारी ने ट्वीट करके कहा कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात करूंगा, जिस प्रकार से मनोज कुमार का पिक्चर का उन्होंने वो गीत सुनाया सबको, तो उनका कहना था कि देश हित में बात करेंगे, देश के विरोध में बात नहीं करेंगे। तो क्या एक पूरा डिवीजन है कांग्रेस के खिलाफ? बिकॉज चिदम्बरम एक दिन पहले कुछ कहा कि जिहादी लोकल थे, पाकिस्तान से कोई आया नहीं था, पाकिस्तान को कोई व्यक्ति नहीं था तब जिहादी। तो एक से एक कांग्रेस के लीडर्स का स्टेटमेंट जिस प्रकार से आता है, और मनीष तिवारी अंत में क्लियर कट कहा कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात करूंगा। तो किस प्रकार से आप देखते हो, क्या फूट है? कुछ सेक्शन में तो कांग्रेस ये मानते हैं कि ये डिबेट कांग्रेस रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहा है डिबेट को, देश हित में नहीं है। गोपाल तिवारी जी, नहीं, उनका कोई भी एक स्टेटमेंट बताइए जो कई लोगों ने, मीडिया ने अप्रिशिएट किया है, जो राहुल जी बोले, प्रियंका जी बोले, जो भी लोग, खड़गे जी बोले। और ऐसा है कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात करना चाहिए तो भारत की बात करना चाहिए ना सर। अगर भारत के हित में है तो कश्मीर जो क्वेश्चन है, जो इंटरनेशनलाइज करने की क्या जरूरत थी? जब ताशकंद करार में हमारा तय हो चुका था, तो why didn't they utter a word about Trump statement? एक सिंगल बात भी नहीं की उन्होंने कि ये झूठ है, ये गलत है। एक ट्रम्प का नाम लेने से कतराते थे ये लोग। तो ये ऐसी कौन सी मजबूरी है सर? पूरी देश को ताक पे रख दिया आपने। सर यहाँ पे दो चीजें सामने आती हैं गोपाल तिवारी जी, मैं चाहूंगा जरा सीरियसली जवाब दें आप इसका, जरा सीरियसली सोचिए इसके बारे में। मुझे ऐसा लग रहा था, और समीर भाकरे जी इसके बारे में शायद विस्तार से बता पाएंगे, कि क्योंकि हमारी ट्रेड डेलीगेशन इस वक्त यूएसए में है और टैरिफ्स डिस्कस हो रहे हैं,
तो मुझको ऐसा लग रहा था कि मोदी जी शायद जो है वो ट्रम्प साहब का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि वी होप टू गेट अ वेरी गुड डील फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, बट दैट इज नॉट हैपेंड। आज उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया अक्रॉस द बोर्ड, 25% एक्स्ट्रा। उसके अलावा यह भी कहा है कि क्योंकि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं इसलिए आपके ऊपर और पेनल्टी भी लगेगी। बट नाउ पीयूष गोयल साहब की स्टेटमेंट है कि भाई वी आर स्टिल ट्राइंग टू नेगोशिएट, हो सकता है कि वी विल गेट अ बेटर डील, बट हाउ विल यू गेट अ बेटर डील आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस विल कम इनटू फोर्स डे आफ्टर टुमारो फ्रॉम द 1st of August. However, my first question to you is something else. राहुल गांधी जी ने ये क्यों कहा सर कि हम लोगों ने सीज फायर की मांग की? सर हमारे डीजीएमओ ने कहा, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस आर्मी, उन्होंने कहा, जनरल घई साहब, कि उनको डीजीएमओ पाकिस्तान का फोन आया और क्योंकि वो कहीं और थे वो ले नहीं पाए, तो उसके बाद दोबारा डीजीएमओ पाकिस्तान ने 1.5 घंटे के बाद फोन किया कि भाई सीज फायर कर लेते हैं। तो यानी डिमांड तो पाकिस्तान की तरफ से आई नहीं। तो यहां पर राहुल गांधी जी को यह कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई सर? आप इसका मतलब यू डोंट बिलीव आवर ओन आर्मी सर, आप हमारी फौज पर विश्वास नहीं करते? गोपाल तिवारी जी अब आप बोलें प्लीज। नहीं, अगर करते बिल्कुल है। ये बात जब आई है तो जब ट्रम्प साहब बार बार बता रहे थे, और उन्होंने कल परसों अभी क्या कहा कि जयशंकर ने कहा कि उनके बात नहीं। अरे ट्रम्प साहब ने खुद कहा कि मैंने जेडी वांस को कहा है करके, और जब जेडी वांस भारत में थे, और मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि ट्रम्प खुद ही फोन करके कहे, लेकिन वो तो बात एज अ जूनियर कलीग करके उन्होंने जेडी वांस को कहा। ये कहा ट्रम्प साहब ने कि हमने जेडी वांस को, तो लेकिन राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट को बताइए ना सर, व्हाट डज इट मीन? और अगर ये नहीं होता था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम दूसरे के दबाव में आके हम ये कर रहे हैं, और इधर आप बार बार कहते हैं कि भाई आपने ऑक्युपाइड नहीं लिया, ये नहीं लिया, नेहरू जी का नाम बताते हैं, व्हाट नॉनसेंस सर। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू भागेश राव। आपको मौका था, आपको 3 बार पाकिस्तान ने धोखा दिया था, विश्वासघात किया था आपके साथ, और इसके साथ भी आप जयशंकर बताते हैं उनको कि हम कुछ नहीं, हम लेकिन सर आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट वन थिंग, ये नहीं करेंगे। गोपाल तिवारी जी, मतलब ये तो बहुत ही शॉकिंग है सर। गोपाल तिवारी जी, शॉकिंग इससे भी ज्यादा बात है, एक और ज्यादा शॉकिंग है, और वो मैं कांग्रेस की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। राकेश प्रजापति जी आप भी सुन लीजिए सर, किसी ने भी अभी तक ये मुद्दा नहीं उठाया पार्लियामेंट में। एशिया कप शुरू होने वाला है सितंबर 9 से दुबई में, अबू धाबी में, वहां इंडिया इज गोइंग टू प्ले पाकिस्तान, इंडिया विल प्ले क्रिकेट। ये क्या है सर? अभी अभी उनकी चिताएं जो हैं वो ठंडी नहीं हुई हैं, राख अभी तक गर्म है, और हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की इतनी हिम्मत हो गई कि हम लोगों ने कह दिया यस वी शैल प्ले पाकिस्तान इन द एशिया कप। गोपाल तिवारी जी इसके ऊपर बोले आप, उसके बाद मैं समीर भागरे साहब से यही सवाल पूछता हूं। We should not play with Pakistan. Absolutely right. वो हमने नहीं खेलना चाहिए ना सर। तो ये इसके बारे में कई स्टेटमेंट भी आए थे अभी बीच में, कुछ दिन पहले पॉलिटिकल स्टेटमेंट आए थे। तो यही तो बात है। तो फिर अबे क्यों खेलना चाहिए? ये इसके ऊपर अभी संसद में बात नहीं हुई, लेकिन उसके ऊपर बात हुई थी कुछ दिन पहले। राइट, सो लेट मी No, गो no, अक्रॉस no, I want to say कार्ति चिदम्बरम, यही मैं बोल रहा हूं। चिदम्बरम जी क्या किस प्रकार है? कार्ति चिदम्बरम कहा कि वी शुड प्ले, खेलना चाहिए, इंडिया शुड प्ले पाकिस्तान, इंडिया शुड नॉट गिव वॉक ओवर। नहीं, ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स कांग्रेस के तरफ से आ रहा है, और कार्ति चिदम्बरम को छोटा लीडर नहीं, सीनियर लीडर तो कांग्रेस, उन्होंने खुलेआम कर दिया कि हमें खेलना चाहिए पाकिस्तान से। तो ये बिना, ये कांग्रेस का कुछ और सोच, लीडर्स के कुछ और सोच, क्या तिवारी जी कैसे चल रहा है? आम कांग्रेस में तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। सर कार्ति चिदम्बरम के पहले पी चिदम्बरम ने भी ये कहा, आपने बोला था हाँ। कि ये टेररिस्ट कहां से है। मैं आपके ध्यान में एक बात ला रहा हूं, जब ये 3-4 टेररिस्ट की डिजिटल प्रिंट डिक्लेयर हुए थे, उस समय पहले कहा गया कि ये जो आतंकवादी है, जो ये वो नहीं है करके।
उसके बाद अभी जब ऑपरेशन महादेव के जरिए उन्होंने कल करके उनको ठोका करके बोल रहे थे, इसके बारे में आज की लेटेस्ट अभी तक मिलिट्री आर्मी फोर्सेस ऑफिशियली नहीं बता रहे। Why don't they, मतलब वो क्यों नहीं आगे बता रहे सर? जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय सोफिया कुरैशी और जो ये थे अपना मिस्री थे सचिव, उन्होंने आके मिलिट्री ऑफिसर ने आके बताया था, तो दे शुड कम फॉरवर्ड एंड बताना चाहिए। दे शुड टेल द कंट्री कि ऐसे ऐसे आज के सुबह की डेवलपमेंट है। अभी तक उन्होंने कहा कि अभी तक हम नहीं बताएंगे करके। राइट, लेट मी गो अक्रॉस टू बागरे साहब। बागरे साहब, दो चीजें आती हैं, एक तो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिए, और दूसरा सर, व्हाई डजंट द गवर्नमेंट टेल द बीसीसीआई शट अप, मूव आउट? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाउ डेयर यू कि आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि देयर शुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट व्हिच शुड कम आउट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर बागरे साहब। नमस्कार राजीव जी, मैं नमस्कार भी सर, आपकी बात नमस्कार। से पूरी तरह सहमत हूँ जी कि जो भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शेड्यूल अनाउंस किया है, डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड एंड हमारी क्रिकेट टीम कोई उनसे क्रिकेट नहीं खेलेगी। जो दहशतगर्दी उन्होंने hope so. पाकिस्तान में फैलाई है, Yes, उसके yes. साथ उसके बाद तो कोई भी उससे रिश्ता रखना, चाहे Yes, वो sir. क्रिकेट हो चाहे व्यापार हो, तो हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। और सरकार संजीदगी से इस पे फैसला लेगी, मैं पूरी आशा करता हूँ। लेकिन मैं राजीव जी अभी दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, मुझे तो मतलब हैरानी होती है कि ये देश की सेना को लेकर, देश के ऑपरेशन को लेकर इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। आज अगर मैं आपको बताना चाहूंगा सिलसिलेवार, तो पृथ्वीराज चौहान साहब जो है, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका मैंने अभी एक स्टेटमेंट देखा। उन्होंने कहा कि भाई आपने ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन महादेव क्यों रखा, ये तो हिंदू धर्म के नाम है। मतलब कांग्रेस पार्टी किस लेवल पे गिर गई है। दूसरी बात, इनकी जो कांग्रेस पार्टी किस स्तर पे जा रही है, क्या इनको कोई चीज की शर्म है, क्या ये देश के प्रति कोई कमिटमेंट है? मैं ऐसा समझता हूं कि राजनीतिक मतभेद आपको रहने चाहिए, आप सरकार को सवाल कीजिए, आप सरकार को टफ क्वेश्चन पूछिए, सरकार इज अकाउंटेबल फॉर व्हाटएवर थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन इस तरीके की बात करना, चिदम्बरम साहब जैसा एक नेता जो गृह मंत्री रह चुका, 20-25 साल मंत्री रहा है, वो आदमी ये कह रहा है कि भाई आप बताइए प्रूफ क्या है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे। मतलब इनके पूरे सबके स्टेटमेंट्स, प्रदीप जी और राजीव जी, पूरे पाकिस्तानी मीडिया पे छाए हुए। कांग्रेस पार्टी इज नाउ द डार्लिंग ऑफ पाकिस्तानी मीडिया। दे शुड अंडरस्टैंड कि मोदी साहब को विरोध करते करते ये कहां तक चले गए, ये इन्होंने सीमा लांघ चुके हैं। पहले तो ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर ये बोल रहे आपने अगर हम जीत रहे थे तो सीज फायर क्यों किया, फिर ये बोल रहे सीज फायर ट्रम्प साहब के कहने पे किया, फिर ये बोल रहे ट्रम्प साहब के कहने पे इसलिए किया कि आपको ट्रेड करनी थी। और आज अगर ट्रेड वॉर में अगर ट्रम्प साहब ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, तो राहुल गांधी इज हैविंग व्हाट काइंड ऑफ फेस? मतलब कोई ना, उनके कोई भी आर्गुमेंट को कोई मतलब नहीं है राजीव जी। दिस इज प्योर, आई कैन से कि एक हाराकीरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनके पास ना कोई एडवाइजर बचे जो समझा नहीं रहे कि जनता क्या चाहती है। इनको क्या लगता है एक कोई धर्म विशेष को। लेकिन सर बागरे साहब, एक चीज है बड़ी डिस्टर्बिंग है, मैंने हो जाएगा सर, one thing is very disturbing. Why did Rahul Gandhi have to say that we asked for a ceasefire? We never asked for a ceasefire. Our DGMO has said that, sir. हमारे DGMO आर्मी जो है उन्होंने बोला है कि पाकिस्तानी आर्मी के DGMO ने उनको फोन किया, पहले फोन किया, उसके बाद 1.5 घंटे के बाद दोबारा फोन किया। It is Pakistan who asked for a ceasefire. अब आप बताएं बागरे साहब, why did Rahul Gandhi have to say that? ये पूरा कांग्रेस पार्टी का वैचारिक पतन और दिवालियापन है। I can say it very confidently कि राहुल गांधी, in spite of being coming from a family who has ruled the country, and राहुल गांधी इतने साल से राजनीति में, उनको बेसिक चीज की समझ नहीं है। अगर आर्मी ऑपरेशंस के बारे में अगर आर्मी आपको ब्रीफ कर रही है, तो आर्मी के प्रवक्ताओं पे, डीजीएमओ पे विश्वास करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि एक राजनीतिक निर्णय मोदी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर का लिया, लेकिन हम तो पूरा क्रेडिट सेना को दे रहे हैं ना। हम थोड़ी बोल रहे, अगर कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लड़ाई लड़ी थी इंदिरा जी के नेतृत्व में और जनरल मानिक शॉ ने इतनी बड़ी जीत दिलाई, तो हम उस वक्त
ये थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई जनरल मानिक शाह गलत थे या इंदिरा गांधी ये थी। तो इनको ये समझना चाहिए मेरे हिसाब से। सर राहुल गांधी मोदी हेट में मतलब ऐसा है कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और एक परिवार को इतना पावर की आदत है, और मोदी साहब आने के बाद से 15 साल से पावर से दूर है, तो जल बिन मछली जैसा इनका हाल हो रहा है, छटपटा रहे। ये सरकार को कोई भी तरीके से कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि जो देश का युवा, देश की जनता, देश का हर समाज का वर्ग, प्रदीप जी एक बहुत मतलब डिस्टर्बिंग फैक्टर है कि आज पाकिस्तान के मीडिया में इनका हर चीज कोट किया जा रहा है। और जब हमारे विदेश मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि नो वर्ल्ड लीडर हैज इंटरफियर्ड इन द ऑपरेशन सिंदूर और स्टॉपिंग ऑफ दैट, तो वर्ल्ड लीडर इंक्लूड्स मिस्टर ट्रम्प ऑल्सो। ट्रम्प कोई बाहर के स्पेस स्टेशन से नहीं आते। तिवारी जी आपको समझना चाहिए कि कोई भी वर्ल्ड का नेता इसमें नहीं पड़ा है। ट्रम्प साहब और मोदी साहब की बातचीत नहीं हुई। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कर रही है तो आप अगर अमेरिका के नागरिक है कि भारत के नागरिक है, आप पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना चाहते कि हिंदुस्तान का देखना चाहते? मुझे तो सही में राजीव जी आई एम शॉक्ड विद द काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स कांग्रेस इज मेकिंग। आई एम रियली शॉक्ड। रणनीति शिंदे बोल कैसे सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था? क्या उनको पता है तमाशा? उनके फादर जब होम मिनिस्टर थे तो कई प्रकार के आतंकवादी हमले हुए। उनके फादर के राज जब होम मिनिस्टर थे तब इन्होंने हिंदू भगवा आतंकवाद को कॉइन करने की कोशिश की। सर ये बहुत बड़े साजिश और ये there is some element when Priyanka Gandhi ji totally disappointed with the opposition. प्रियंका गांधी जी जब कहती है कि 26/11 के बाद हमारा होम मिनिस्टर रिजाइन किया, हमारा चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र से रिजाइन कर दिया, वी फिक्स्ड अकाउंटेबिलिटी, दो वी एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म दैट हम रिटेलिएट नहीं किए, हमने अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके दोनों इस्तीफा दिए। मगर यहां पर आपने ना अकाउंटेबिलिटी फिट किया, ना कोई रिजिग्नेशन, कोई पनिशमेंट किसी को दे रहे हैं, तो इतना बड़ा हादसा हुआ। Who is to blame? Accountability has to fix. So when Priyanka Gandhi says that, I think there is some substance in that, Bakri sir. देखिए प्रदीप जी अकाउंटेबिलिटी जो है, मैं पूछना चाहता हूं कि 2002 में जब कोटा कानून अटल बिहारी साहब ने लाया और 2004 में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई उसको कोटा कानून को हटा दिया। अब 2005 से 2010 के बीच में 27 आतंकवादी हमले हुए जिसमें 1000 लोगों की जान गई। आप मुझे बताइए मुंबई हमले में इनके जो गृह मंत्री और इन्होंने इस्तीफा दिया उसके रीजंस क्या थे? वो जाके वहां पर टूरिस्ट साइट सामान बता रहे थे, एक दिन में 5-5 कपड़े बदल के गए थे। शिवराज जो इनके जो गृह मंत्री थे, तो ये कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। ये क्या सिर्फ डोजियर दे रहे थे? मुझे मैं तिवारी जी को चैलेंज करता हूँ कि 2005 से 2011 के बीच में जो आतंकवादी हमले हुए हैं, इन्होंने पाकिस्तान पे कौन सी कार्रवाई की? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो लेट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा है कि आई एम वेरी हैप्पी दैट अगेंस्ट ऑल एडवाइस आई डिडंट अटैक पाकिस्तान आफ्टर 26/11। उन्होंने शर्मन शेख के सामने एक शर्मनाक डिक्लेरेशन साइन किया पाकिस्तान के साथ। तो मुझे ऐसा कहना है अकाउंटेबिलिटी पहले देखिए। आज जो यूएस के जो एम्बेसडर थे इंडिया में, उन्होंने साफ स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि पहले तो कश्मीर में जब इतने हमले होते थे तो वो एक नॉर्मल चीज हुई थी, इसलिए इन्होंने मुंबई, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर हर जगह हमले किए। तो आज मोदी साहब के जब से आए हैं 14 से लेके, तो आप देखिए 2025 तक पूरे हिंदुस्तान में कई हमला नहीं हुआ। जो भी हमले आतंकवादी हुए हैं वो कश्मीर सेंट्रिक हुए। और आप देखिए 370 आने के बाद या मोदी सरकार आने के बाद 70% हमले कम हुए। कोई पथराव नहीं हो रहा है, कोई घुसपैठ नहीं हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो आतंकवादी मारे इट हैज मतलब 150% ज्यादा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर कोई आतंकवादी हमला हुआ है, अमित शाह जी ने तो गृह मंत्री होने के नाते कहा है कि अगर कोई घटना घटी है तो हम सरकार है, हम जवाब देने को तैयार है। तो इसका मतलब ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उसकी इंक्वायरी करके प्रजापति जी बोल रहे थे कि 1000 दिन वो कहाँ थे। अरे 100 दिन सर, 100 दिन, 100 दिन जी। तो आश्चर्य लगता है कांग्रेस पार्टी एक चीज ये नहीं बोल रही है कि आपके ऑपरेशन सिंदूर में आपने खूंखार 100 आतंकवादी मारे जो चिदंबरम साहब गृह मंत्री थे उस वक्त के हमले के मारे। तो इनका ना एक वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन है फॉर आवर आर्मी। चलो बीजेपी का आप मत तारीफ कीजिए, लेकिन अपनी आर्मी का कीजिए। अगर कोई पायलट राफेल में या कोई बैठता
जी गोपाल तिवारी जी के पार्टी के व्यूज सुनता होगा तो उसको क्या लगता है सर? मतलब आज अभी एक कोई सीरीज आई है तो उन्होंने जो के मेनन ने उनका एक डायलॉग है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं कोट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो जो आज आर्मी के हमारे नौजवान है, हमारे जो जाबाज है, जो अपनी जान पर खेलकर आ रहे हैं, उनके बारे में भी इनको कुछ नहीं है। अरे आपने अगर पाकिस्तान के एयरबेसेस डिस्ट्रॉय किए तो उससे आपको राहुल गांधी का एक फेवरेट पास टाइम है जो पाकिस्तान का भी है कि कितने जहाज गिरे। गोपाल तिवारी जी के पार्टी ने कभी पूछा है क्या कि कितने आतंकवादी मरे, कौन कौन मरे, कितने ठिकानों पर हमला हुआ, पाकिस्तान की एयरबेसेस जो डिस्ट्रॉय हो कितनी % हुई? मुझे एक सवाल बता दीजिए। और मैं राजीव जी, प्रदीप जी, बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूं कि जो टाइप के स्पीकर्स भी इन्होंने अपने लोकसभा में चुने, इट सेंड्स अ वेरी बिग मैसेज कि ये ना शशि थरूर जी को रखना चाहते, ना मनीष तिवारी जी को रखना चाहते, ये रखना चाहते प्रणीति शिंदे को, जिनके पापा की एक लेगेसी है और वो एक स्टेटमेंट पढ़ रही है। मतलब किसी ने लिख के उनको दिया है और वेट किया है कांग्रेस पार्टी ने लिख के दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा था। सर, इससे ज्यादा डैमनिंग स्टेटमेंट और एम्बैरेसिंग स्टेटमेंट हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं है। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि अपने सांसद को उन्होंने इस तरीके की बात करने की। सर, आई एम बिकॉज ऑफ द डिफेंस फोर्सेस और कंट्री की सिक्योरिटी है। सर, अगर बीजेपी की गलती आप 100 गाली दो, 100 बार क्रिटिसाइज करो, लेकिन सेना के बारे में तमाशा बोलना, जब कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह बोल रही है तो क्या प्रणीति शिंदे को तमाशा लग रहा है? तो वेरी वेरी डिस्गस्टिंग। तो वो कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो विजय शाह साहब ने उल्टा सीधा बोला, तो सर उनको अभी तक निकाला? उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ सर? ही इज स्टिल अ मिनिस्टर। कोर्ट में एफआईआर हुआ है उसके खिलाफ। सर, ही इज स्टिल अ मिनिस्टर, he has just apologized. कोर्ट में एफआईआर हुआ है Sir, that is pending. But why hasn't he He has resigned? apologized. Court has not accepted his apology. Sir, why hasn't he resigned? That is a fact. Why hasn't he resigned? But That, he has- sir, he has that is something the apologized, court will Rajiv do. ji. Sir, वो तो कोर्ट करेगा ना। आपने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार को उसको बोलना चाहिए था कि भैया अभी इस्तीफा दो और जाओ, निकलो। Sir, Why he is has been it- reprimanded in a bill बताने के बाद he has क्या बात apologized. करते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। नहीं, Why is he still a minister? क्या बात कर रहे हैं सर? Why is Vijay Shah still a minister? अरे तिवारी जी, मुझे तो- तिवारी जी, है कि पूरी सेना, पृथ्वीराज चव्हाण साहब ने आज जो बोला मध्य है प्रदेश कि के ऑपरेशन मुख्यमंत्री महादेव बोलते हैं हिंदू कि नाम पूरी है। सेना, भारतीय सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ऐसे तो ये सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। ये क्या समझे क्या सेना को? और जो अरे गोपाल तिवारी जी, इसके ऊपर जवाब नहीं मिलेगा। जवाब दीजिए। वो देविंदर सिंह कहाँ गया? आपको मतलब आपको सेना का शौर्य का श्रेय लेना है, सेना का बहुत बड़ी देशभक्ति जताना है, लेकिन ऐसे बेकसूरों को मरवाना है क्या आपको? क्या बात चल रहे? ठाकरे साहब कर सकते? अरे उस समय 26/11 को लोगों ने सामने जाके आतंकवादियों को पकड़ा है, जिंदा पकड़ा है। उसके सवाल जी उसको ट्रायल चला के उसको सजा दी। डेविड हेडली, बाकी जो आतंकवादी थे वो आज भारत में आए गए हैं। मोदी साहब के राज में अमेरिका से डेविड हेडली को किसने लाया है? करते हैं जाने के लिए एयरबस स्टेशन तावुर राणा को लाया करते हो, और क्या बात कर रहे हो सर? डेविड हेडली नहीं आएगा। दबाव के नीचे ये तावुर राणा आ गया सर। डेविड हेडली इज अ CIA हुआ है। और वो सिर्फ बार ये आपके गोपाल तिवारी जी, नहीं क्या रक्षा जरा करने के लोगों की। शांति। गोपाल तिवारी जी, शांति शांति शांति, एक मिनट। कोई अच्छी खबर भी सुन लें। इतनी we are just talking, sir, we are just talking about gloom and doom. कोई अच्छी खबर भी सुन ले जरा। The United Nations Security Council today has condemned the TRF and has said the TRF is actually a branch of the Lashkar-e-Toiba, both based in Pakistan. In spite of the fact that Pakistan is the chairman of the Security Council, in spite of that, the UN Security Council has issued such a statement today. It is an official statement of the United उनको Nations सर Security बनाने Council. नहीं देना चाहिए था, उनको IMF का चलो। फंड देना नहीं चाहिए था, वो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य वाइस प्रेसिडेंट बने नहीं बनना चाहिए था। एक देश हम पूरे सर, कभी तो तारीफ कर दिया करो। घर का दौरा करते हमारे प्रधानमंत्री, नॉट अ सिंगल कंट्री हमें Sir, everybody supported us. 193 countries supported us. सपोर्ट नहीं किया सर। 193 देशों ने किया। 193 प्रजापति साहब, अखिलेश यादव जी ने पीओके के प्रश्न उठाए, पीओके के प्रश्न उठाए अखिलेश यादव जी ने, निकलना पड़ेगा। और सभी ने, राहुल गांधी जी ने पीओके प्रश्न उठाया, ऑपोजिशन ने पीओके प्रश्न उठाया।
मोदी जी ने एक ब्यूटीफुल 4 पंक्तियों से सबका जवाब दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी मंजर है तारीख के नजरों में कि लम्हों ने कथा की थी और सदियों ने सजा पाई है। नेहरू पर उन्होंने कहा कि पीओके आपका देन है, आप चाहता तो पीओके नहीं होता। तो ब्यूटीफुली जिस प्रकार से 4 पंक्तियां उन्होंने इकबाल का या पेश कर दिया था, तो किस प्रकार से देखते हो प्रजापति साहब? प्रजापति जी, सर योर फोन इज ऑन म्यूट। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। प्रजापति साहब, जी प्रदीप जी देखिए, अब मोदी जी भाई ये तो माना ही है भारत के लोगों ने कि मोदी जी ने अपने शब्दों के बाण से भारत के लोगों को मंत्रमुग्ध करने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ शब्दों के बाण से, और उनके पास कुछ भी नहीं है। बात बड़ी है भाई, सीधी सी बात है, विदेश नीति की बात चल रही थी, कहाँ रह गई तुम्हारी विदेश नीति? जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था तो आपके साथ एक भी देश साथ खड़ा हुआ नहीं था। एक देश का नाम बता दे जो खुल के स्टेटमेंट दे रहा था कि हम भारत के साथ। वहीं पाकिस्तान के साथ 3 देश, चीन, तुर्की और एक और देश, तीन देश खुल करके उनके साथ खड़े हुए थे। अजरबैजान जी, आपके साथ एक देश नहीं खड़ा हुआ था। और अभी अभी 9 अरब डॉलर का पाकिस्तान को सहयोग दिया गया है, 9 अरब डॉलर का। और भारत को कितना सहयोग मिला है ये बताएं। ये मोदी जी पिछले 2020 से लेकर के 2025 तक 368 करोड़ रुपए विदेशी यात्राओं पर खर्च कर चुके हैं, विदेशी यात्राओं पर। प्रजापति साहब, I'll have to stop you 1 second. 1 second, sir. Bakre साहब, you have to leave. Bakre साहब, फ्लाइट सर एट 10। You have a flight at 10 o'clock. Okay, चलते चलते सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इसके पहले कि आप जाएं, can you please tell us what are we going to do about the Trump tariffs? Trump tariffs सर पूरी इकोनॉमी को अस्त व्यस्त कर देंगे सर। 25% टैरिफ लगा दिए सर, over and above what is already there, and they will come into force from day after tomorrow. परसों से लगने वाले हैं सर हिंदुस्तानी गुड्स पे। सर क्या होने वाला है बताइए ना प्लीज बागरे साहब। राजीव जी, जस्ट नाउ सम फ्यू आवर्स बैक ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट किया है कि हमने इतना इतना टैरिफ लगाया। इट्स अ इवॉल्विंग सिचुएशन। पीयूष गोयल जी ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है कि वी आर होपफुल ऑफ अ ट्रेड डील। हमने यूके के साथ बहुत बढ़िया ट्रेड डील लिए। और सर ट्रम्प साहब का गुस्सा जो है वो उन्होंने रशियन एनर्जी ऑयल हम लोग जो खरीद रहे हैं और रशियन आर्म्स हमने जो खरीदे, तो सर देश इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री विद अ स्ट्रॉन्ग लीडर लाइक मिस्टर मोदी, तो हमारे देश के जो हित में रहेगा वो करेंगे। दूसरी बात है, ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लगाया डेफिनेटली इकोनॉमी का उसमें इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जैसा मोदी जी हर समस्या का समाधान ढूंढने में आज तक कामयाब हुए, आई एम प्रीटी होपफुल एंड आई एम वेरी श्योर दैट इसमें से अच्छा रास्ता निकलेगा। ट्रम्प एंड अमेरिका इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर कंट्री। डेफिनेटली दे आल्सो वांट टू डू बिग बिजनेस विद इंडिया। इंडिया इज हमारे भारत के लिए भी बहुत बड़ा मार्केट है यूएस का। सो म्यूचुअली विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। अगर आपने देखा होगा तो सेम उन्होंने चाइना के लिए भी बोला है कि चाइना पे भी हम बहुत ज्यादा स्टीप टैरिफ्स लगाने वाले हैं। सो दिस इज अ इवॉल्विंग ग्लोबल सिचुएशन जी। I am very sure that in few days of time we will have a good picture. I hope to God. Thank you very much, Bagre साहब. Let me go across. Thank you very much. So nice. प्रजापति साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, जो जिसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। सर मेरे पास अभी ये आंकड़ा आया है सर, आपको मालूम है जनवरी और जून के बीच में 2025 के, आपको मालूम है 113 एट्रोसिटीज हुई दलितों के खिलाफ भारत में, और ऐसी एट्रोसिटीज जिसमें लोग मारे गए हैं 113 सर। ये तो सिर्फ दलितों का हाल है और ये ऑफिशियली रिकॉर्डेड है। सर आप मुझे बताइए, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, आतंकवाद, सर ये सब तो हमारी सेना निपट लेगी, बाकी जो भी सरकार आएगी कर लेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज ये है
कि जिस आतंक के सामने दलित रह रहे हैं, आदिवासी रह रहे हैं और ओबीसी में जो सुपर ओबीसी हैं वो रह रहे हैं, उसका समाधान कौन निकालेगा सर? प्रजापति साहब। राजीव जी, इस देश की आतंकवाद, मैं तो कहता हूं आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या नहीं, क्योंकि आतंकवाद से 100, 200, 500 लोग ही नहीं खत्म होते हैं पूरे साल में, 10-20 लोग खत्म होते हैं, कभी कभार ज्यादा होता है। समस्या आतंकवाद भी है, लेकिन आतंकवाद से बड़ी समस्या है जातंकवाद। जातंकवाद, जी। जातंकवाद इस उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की, और मैं तो ये कहूं भारत की अब से नहीं, सदियों से चली आ रही, त्रेता युग, द्वापर युग और जो भी युग है, सतयुग, कलयुग, सभी में जातंकवाद के कारण जातियों को देख करके अनटचेबिलिटी, टचेबिलिटी जैसी समस्याओं को, अदृश्यता जैसी, बताइए इस देश के अंदर ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति दिखाई दे जाता था, ठीक है ना, वाल्मीकि समाज का विशेष रूप से, तो व्यक्ति, देखने वाला व्यक्ति अपवित्र हो जाता था और घर पर जाकर के यज्ञ करता था और घर पर जाकर के जो है शुद्धिकरण करता था। इस देश का ये कल चल रहा है। तो इस देश के अंदर आतंकवादी एक बहुत बड़ी समस्या रही है, और आतंकवादी बहुत बड़ी समस्या रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं इस देश की सबसे बड़ी समस्या है जातंकवाद। जैसा कि आपने रिकॉर्ड दिया, मैं तो कई बार आपके माध्यम से बता चुका हूं कि प्रजापति समाज पर कितनी घटनाएं हुई है। उन घटनाओं में एक में भी जो है ये लोग FIR दर्ज नहीं कराना चाहते। लेकिन राजीव जी, मैं एक बहुत बड़ी समस्या आज ट्रेंड हो रही है, ये उस पर आपकी नजर डालना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ी समस्या है, बोलिए सर। SSC एग्जाम को लेकर के। जी। कल परसों में SSC का एग्जाम हुआ था, और परीक्षा शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं होता, बल्कि एक सपना होता है, एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि करोड़ों युवाओं के संघर्ष, उम्मीद, वर्षों की तपस्या का प्रतीक होता है। अब आप सोचिए, जो परीक्षा देश की सबसे बड़ी परीक्षा में मानी जाती थी SSC, उस परीक्षा को पहले एक कंपनी थी TCS, वो कंपनी कराती थी। हालांकि उस कंपनी में भी थोड़ी बहुत कमियां थी, लेकिन उस कंपनी को टेंडर छोड़ करके आज मोदी की कोई बहुत बड़ी हितैषी, मोदी जी की, मैं सीधा बात बता रहा हूँ, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, मोदी जी की बहुत बड़ी एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है एडुकिटी एडुकाइटी को जो है इन्होंने टेंडर दिया है, और इतनी घोर अनियमितता हुई है। एक बच्चे को 1 से 2 दिन पहले उसका सेंटर पता चलता है, 1 से 2 दिन पहले, और उसका सेंटर 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर डाला गया है। अब आप सोचिए, 1 दिन पहले किसी व्यक्ति को पता चलेगा तो वो कैसे वहां पर पहुंचेगा, और 500 किलोमीटर में आने जाने पर कितना खर्चा होगा, 2 से 3 हजार खर्चा होगा। इस युवा को किस तरीके से इस सरकार द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। और वहां भी ये बता रहे हैं कि उन सेंटरों पर इतनी बेकार व्यवस्था थी कि माउस नहीं चल रहा था, स्क्रीन अटक रही थी, बीच में पेपर गायब हो गया, कोई वहां पर सुनने वाला नहीं था। वहां पर 19 से 20 वर्ष के 22 साल के इन्वेजिलेटर थे, जो मात्र 10,000 5,000 रुपए में बिक रहे थे वहां पर। इस तरीके से इन्होंने देश की एक सबसे प्रमुख संस्था SSC को भी बर्बाद करने का काम किया है। रोजगार के रूप में पहले ये अग्निवीर को, सेना को बर्बाद कर चुके हैं, और मेरा सीधा आरोप है कि अब ये SSC को भी बर्बाद करके देश के जितने भी संस्थान हैं जहां पर बाबू वकीलों की भर्ती होती है, ये देश को बर्बादी को ले जाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है, इस पर राजीव जी जरूर आप निगाह दौड़ाएं और इस पर जरा सर्वे करें, अपने लोगों से कराएं कि किस तरीके से। और इनका ये भी कहना था, SSC की घटना, जो SSC वाले कह रहे हैं कि AI से परीक्षा करवा रहे हैं, तो ये AI इतना ही स्मार्ट है, तो उसमें बता रहे हैं कुछ लोग कि पहले से उत्तर मार्क आ रहे थे कुछ प्रश्नों के। कैसे, हाउ दिस पॉसिबल? एक एग्जाम हो रहा है, उसमें पहले से ही बच्चे आ रहे हैं। अब आप बताइए, एक बेरोजगार व्यक्ति 400 से 500 किलोमीटर दूर पेपर देने जाएगा,
किस तरीके से उसके फॉर्म भरने के पैसे नहीं होते हैं, वो 500 किलोमीटर 2-3 हजार रुपए का इंतजाम कैसे करेगा। हजारों नहीं लाखों बच्चों की परीक्षा तक छूटी है इसमें एसएससी में। और मतलब क्या कहूं मैं, ये समझ लीजिए ये देश छात्रों के लिए जो है देश के दुश्मन साबित हो रहे हैं भाजपा वाले। You know, दोनों पार्टी बीजेपी एंड समाजवादी पार्टी क्या हिंदुत्व का एजेंडा को आगे बढ़ा रहा? बिकॉज जहां योगी जी ने कहा कि बांग्लादेशी हिंदूज के लिए हम यहां जगह देंगे, उत्तर प्रदेश में जगह देंगे, शेल्टर देंगे, वही उससे पहले अखिलेश यादव जी ने शिव मंदिर बनाया था इटावा में, हिंदुत्व को या हिंदू वोट्स को साथ में लेने के लिए। तो इस प्रकार का दौड़ आप किस प्रकार से देखते हो? बोले शिव मंदिर का विरोध, वही हरिद्वार के जितने संत मुनिगण सब लोग ने विरोध किया है, ठीक है, ठीक है, कैसे देखते हो? क्या हिंदुत्व का एजेंडा है यूपी इलेक्शंस में अभी भी? देखिए प्रदीप जी, समाजवादी पार्टी हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी रही। उसने कभी भी ना तो कोई हिंदू के खिलाफ शब्द बोला, ना कभी मुस्लिम के खिलाफ बोला, ना सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, कबीरपंथी, बुद्ध, किसी भी धर्म के खिलाफ हमारे नेता का कोई बयान हो तो बता दीजिए। हमारे नेता और हमारे नेताजी का दोनों का कोई बयान, और इनके सैकड़ों नेताओं के बयान आपको मिल जाएंगे जो मुस्लिम धर्म के खिलाफ किस तरीके से इनका एक सांसद संसद में खड़े होकर के पूरे मुसलमानों को आतंकवादी, गद्दार, जिन क्या क्या शब्दों से नवाज रहा था। ऐसे ही कई सांसद इनके भाषण में देख लीजिए क्या क्या मुस्लिमों के लिए कहते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा सबके साथ, सबके विकास के साथ रही है। समाजवादी पार्टी में जब थी तो कन्या विद्या धन मुस्लिमों को भी मिलता था, हिंदुओं को भी मिलता था, सिखों को भी मिलता था, पारसियों को भी मिलता था, कभी भेदभाव नहीं हुआ। लैपटॉप मिलता था, कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। अगर इस देश के अंदर धर्म के आधार पर भेदभाव करने का कार्य किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरी कोई पार्टी इस देश के अंदर नहीं है जो धर्म के विरुद्ध भेदभाव। सर यहाँ पे दुकानें बंद करा दी 1 महीने से, बहुत से लोगों की दुकानें बंद हैं। आप सोचिए राजीव जी और प्रदीप जी, वो 1 महीने से कैसे लोग अपने घरों का पालन पोषण कर रहे होंगे। सर यहाँ पर मेरठ से, हरिद्वार से लेकर के दिल्ली के बीच पड़ने वाली दुकानें, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उन मुस्लिम कम्युनिटियों की हजारों दुकानें बंद हैं। आप बताइए वो हजारों परिवार किस तरीके से अपने घर और परिवार का पालन पोषण कर रहे होंगे। प्रजापति साहब, दुख की बात है। प्रोफेसर प्रजापति साहब, चलते चलते आपसे मैं चाहूंगा कि आप इस सिचुएशन पर कमेंट करें। झारखंड में 2 नन्स को पकड़ लिया गया, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पकड़ने वाले कौन? बजरंग दल के लोग। बजरंग दल की कोई महिला थी जो बड़े गुस्से में दिख रही हैं, काफी और लोगों ने उनको मारा पीटा भी है। सर ये क्या हो रहा है देश में? व्हाट इज हैपनिंग? उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का उनके ऊपर सेक्शन लगा दिया गया है। वो तो उनको नौकरी दिलवा रहे थे। ये क्या हो रहा है सर? राजीव जी, मैंने कहा ना, ये भाजपा के लोग नाचना आवे आंगन टेढ़ो, वो वाली कहावत है। और इनकी एक कहावत और भी है, ये लोग अपने अंदर झांक करके नहीं देखते। अभी मैं तो पहले ये कह रहा हूँ, जितने भी लोग ऐसे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जो भी धर्म परिवर्तन में संलिप्तता रखते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। जी। लेकिन समस्या ये है भारत की मीडिया की और भारतीय जनता पार्टी की कि ये केवल और केवल दूसरे धर्म के लोगों को दिखाई देने पर तो लंबी लंबी न्यूज चलाते हैं, लेकिन अपने लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते, कोई भी न्यूज चैनलों पर नहीं चलता। ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं तो राजीव जी इतना ही कहना चाहूँगा कि इन्हें सद्बुद्धि दे और सभी लोगों के विकास और सभी लोगों का सबका विकास
और सबका विश्वास जीतने में भारतीय जनता पार्टी Right. हो सके। जी, बोलिए। लेकिन ये पूछिए। कि अपना विकास और अपने ही कुछ लोगों का विश्वास जीतने पर कार्य कर रहे हैं, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे। But I want to ask you, as Dimple Yadav ji and Jaya Bachchan ji, जिस प्रकार से प्रजापति साहब उनका जबरदस्त प्रदर्शन रहा, तो किस प्रकार से डिम्पल यादव जी ने कहा कि हमारे पास फाइटर जेट्स बहुत कम है, तो एक वातावरण बन गया कि डिम्पल जी का, जया बच्चन ने कहा ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा है, जब हमारे सिंदूर को उजाड़ा, तो दोनों का स्टेटमेंट आप कैसे देखते हो पार्लियामेंट से ऑपरेशन सिंदूर डिबेट में? नहीं, प्रदीप जी बिल्कुल सही बात है, प्रदीप जी बिल्कुल सही बात है। क्या गलत कहा उन्होंने? आप बताइए, एक तरफ तो हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया और आपने उसका नाम सिंदूर ही रख दिया। अरे नाम रखना था तो कोई और रखते। सिंदूर को जब उजाड़ दिया गया और आप ऑपरेशन सिंदूर ही लेके आए, अरे बाद में आपको तो पता होगा कि ये घर घर सिंदूर भिजवाने की प्लानिंग चल रही थी और घोषणा भी कर दी थी कि घर घर सिंदूर जाएगा। ये इतने बेशरम लोग हैं कि महिलाओं का सिंदूर उजड़ा और ये जो है घर घर सिंदूर पहुंचा रहे थे। वो तो धन्य है हमारे देश की मातृ शक्ति, धन्य है हमारे देश की नारी शक्ति, जिन्होंने इनको इनकी धज्जियां उड़ाने का काम किया और इन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा और सिंदूर बांटने की जो इनकी मंशा थी वो अधूरी की अधूरी और धरी की धरी रह गई। नहीं तो ये तो घर घर सिंदूर पहुंचाने की जुगाड़ में थे कि घर घर सिंदूर जाएंगे, लेकिन महिलाओं ने कह दिया कि केवल हम सिंदूर अपने पति का ग्रहण करते हैं, कि तुम्हारे नाम पर करेंगे। क्या मतलब है बताइए, कोई सिंदूर दूसरा व्यक्ति देकर जाएगा? कौन भारत की महिला ये स्वीकार करेगी? कौन हिंदू धर्म की महिला ये स्वीकार करेगी? इस तरीके से मैंने कहा ना, डिम्पल यादव जी और जया बच्चन जी का स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। इसका नाम सिंदूर, वैसे तो कुछ है ही नहीं सिंदूर ऑपरेशन में, क्या है आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं। इन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है वास्तविकता पूरा देश जान चुका है आज। राइट, थैंक यू सो मच प्रोफेसर प्रजापति साहब, ऑल द मोस्ट स्ट्रेंथ टू यू। जिस प्रकार आप संघर्ष कर रहे हैं प्रजापति समाज के लिए और कुम्हार समाज के लिए और उसके अलावा दलितों के लिए भी, उसके लिए आपको साधुवाद। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Well, but the one thing which really troubles me, Pradeep ji, is that WCL, we refused to play the semi-finals against Pakistan. So why hasn't a statement come out from the BCCI that we are not going to be playing Pakistan in the Asia Cup? बिल्कुल। I mean, what's going on here? And what is wrong with the opposition? Why are not they creating a furore in Parliament? Except Owaisi, I don't think anybody has done it. Only Asaduddin Owaisi साहब, nobody else. क्योंकि बाकी सब पार्टीज के जो लोग हैं सर वो मेंबर्स हैं ना कहीं BCCI के। And Karti Chidambaram was the person saying that we should play Pakistan. Yeah. What is going on? And Chidambaram साहब saying, how do you know they were Pakistanis? So we don't know who is from which side actually, where the Congress is concerned. Half speak what the BJP wants them to speak. But really and truly speaking, Priyanka Gandhi's performance was quite impressive. Very frankly speaking, it was a very good speech, very sober, very straight, very upfront, and very, very objective. And all the very best to her. I hope they promote her. Rahul Gandhi is Rahul Gandhi, but Priyanka Gandhi is the future. I hope the Congress realizes that. But then, Pradeep ji is their party. Yes. And you are not a member of the Congress, neither am I. And that is just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड वो घंटी भी बज गई है। The fastest growing channel of the nation now. The fastest growing channel of the nation now. And do send in your comments. I love reading your comments. We'll be back over here tomorrow again, and that's it. Thank you very much for staying with us and keep staying with us. आपके समर्थन के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय।